Good morning, students. Today we will learn the next concept, that is money measurement concept. Name says money को measure करना है. Money measurement concept. It means वही transactions record होंगी जिनको आप मनी में मेजर कर सकते हो. Only those accounting events which are capable of being expressed in term of money. Accounting events which are capable to be expressed in term of money. यानी वही ट्रांजेक्शन जिसको आप बता सकते हो कि इतना रुपए का है या इतना डॉलर का है, अकॉर्डिंग टू योर करेंसी, द थिंग्स विच यू कैन आइडेंटिफाई इन और यू कैन एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी विल बी recorded in the books of accounts. It is very important. And even though if there is some important events for the business occurs and cannot be expressed in term of money, although they affect the business but cannot be expressed in term of money, those will be not recorded. For example, accounting does not record quarrel between production manager and sales manager. It does not report that a strike is beginning, and it does not reveal that the competitor has placed a better product in the market. These facts happens in the business, but these facts cannot be expressed in term of money. So we are recording only the events which are capable to express in money. For example, sales. Examples are sales, purchase, expenses, incomes, profit and losses. These can be expressed in term of money, so only these kind of transactions should be recorded in the books of account. There is no sense of recording the transactions which are not capable to express themselves in term of money. So we can't record the transactions which are not capable to express in term of money. Next we have accounting period concept. अब देखो क्वेश्चन हेडिंग क्या कह रही है, अकाउंटिंग पीरियड. तो हमने ये क्या मानना है इस क्वेश्चन में कि इस कंसेप्ट में हम ये मान रहे हैं कि हर अकाउंट्स का एक बिगिनिंग डेट होगा और एक एंडिंग डेट होगा. तो यहाँ पर जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट है वो कह रहा है कि जो रिकॉर्ड्स मेंटेन होंगे वो एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के एक साथ मेंटेन होंगे. फॉर एग्जांपल, वी यूज टू मेंटेन आवर रिकॉर्ड्स अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल ईयर. And you know financial year is 1st April to 31st March. ये हमारा बजट वाला जो सेशन आता है ना, उसको हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं. और हमेशा जो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं वो 1st अप्रैल से 31st मार्च के अकाउंटिंग पीरियड के बीच के सारे इवेंट्स रिकॉर्ड होते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज वन मोर ईयर दैट इज नोन एज कैलेंडर ईयर. वो स्टार्ट होता है जैन से दिसंबर में एंड होता है. तो कई सारे बिजनेस जो है अकॉर्डिंग टू दैट कैलेंडर ईयर दे मेंटेन देयर बुक्स ऑफ अकाउंट. सो देयर शुड बी द if we are talking about the accounting period concept, there should be one specific period of 1 year in the book where and for that particular period, every year for that particular period book should be maintained. अब हमने बात की जब हमने जनरलाइजेशन से बैलेंस शीट फाइनल अकाउंट्स तक या फाइनल स्टेटमेंट्स तक की बात की थी, तो हमने बताया था कि लास्ट में बैलेंस शीट बनती है. सो इन दैट केस at the end, if we had to prepare balance sheet, that balance sheet should be at the end of every 31st March. So that is accounting period concept. Next is cost concept, or this concept is also known as
हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट. अब देखो historical cost, historical means a things which is related to the history. So according to this concept, assets should be recorded on their original cost. एसेट्स को हमने क्या करना है, ओरिजिनल कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करना है, एट द प्राइस विच इट वाज एक्वायर्ड, एट द प्राइस विच इट वाज एक्वायर्ड और परचेस्ड. यानी हमने जितने रुपए में या जितने भी अमाउंट में किसी एसेट्स को परचेस किया है वही प्राइस हमें रिकॉर्ड करना है. And future upcoming years में भी that same price will be recorded. For example, cost of you have purchased a building in previous years. Suppose कभी past में हमने खरीदी थी या कोई भी building, and the cost of that building is 20 lakh, and you have to record the same original cost of that particular building in your books of accounts, because whatever the market price of that value, that will not affect your business. Okay, so this according to this concept, simply according to this concept only the original or historical cost should be recorded. It doesn't mean that assets will continuously shown at their acquisition price for as long as the business entity owns them. Their cost is systematically reduced from year after year. हर साल हम क्या करेंगे, उनकी कॉस्ट, अगर सपोज मैंने एक मशीन खरीदी 2 लाख में, अब हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट कहता है कि हमने जिस कॉस्ट पे खरीदा उसी कॉस्ट पर हम रिकॉर्ड करेंगे, मार्केट प्राइस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे. ठीक है, सब्सिक्वेंट इंक्रीज और डिक्रीज जो है मार्केट वैल्यू का, वो इसमें रिकॉर्ड नहीं होगा. बट हम ये this concept never says that always the price will remain same in the future upcoming year. Every year there should be a particular decrement in the value of these assets will be recorded as depreciation. Okay, so this is historical cost concept. अब हम आ जाते हैं dual aspect concept में. dual aspect concept सबसे important concept है, एंड इस पर जो है हमारा मोस्ट ऑफ द 90% अकाउंट जो बेस है वो है डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट में, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझना. ओके, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट सेज दैट व्हाटएवर बिजनेस ट्रांजैक्शंस वी हैव टू फोल्ड इफेक्ट. डुअल का मतलब 2 इफेक्ट्स, यानी जो भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में हो रहा है उसके 2 इफेक्ट्स होंगे. अब उन इफेक्ट्स को हम कहते हैं डेबिट एंड क्रेडिट, यानी उस एक एक्शन की वजह से बिजनेस से कुछ चीजें आ रही होंगी और कुछ चीजें जा रही होंगी. वेदर देयर विल बी अ इंक्रीज इन द वन साइड एंड डिक्रीज इन द अनदर साइड. सो फॉर दिस because of this concept there are the 2 sides, assets and liabilities. 2 साइड बिजनेस की इसी कंसेप्ट की वजह से है, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट की वजह से. तो हमेशा क्या होता है, इसके बेसिस पर हम एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर्म करते हैं, दैट इज एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. जो हमारा ये अकाउंटिंग इक्वेशन है. अब इजीली समझना है इस चीज को कि क्या हुआ बिजनेस में. सो लिसन, इफ यू हैव परचेस्ड, यू हैव स्टार्टेड बिजनेस विथ 20 लाख. एग्जाम्पल दे रहे हैं, हमने बिजनेस स्टार्ट किया, स्टार्टेड बिजनेस विथ 20 लाख. अब देखो डुअल एस्पेक्ट कह रहा है कि दोनों साइड पे इफेक्ट पड़ेगा, एसेट साइड पे भी अपना इफेक्ट पड़ेगा इस चीज का और लायबिलिटी साइड पे भी इफेक्ट करेगा, क्योंकि जो ईच एंड एवरी इवेंट ऑफ बिजनेस इफेक्ट 2 साइड्स. अब देखो तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, हमने 20 लाख रुपीज लगाए बिजनेस में, हमारे पास आ गया कैश. एंड अगर आपने लोन लिया है
if you have taken loan of 5 lakh with 20 lakh cash and loan 5 lakh. अब आपके पास देखोगे टोटल कैश कितना हो गया 25 लाख का, एंड यू नो एसेट्स में कैश भी आता है, तो 25 लाख जो आपका है वो एसेट्स में आ गया पहली चीज. एंड नाउ 5 लाख इज लोन. लोन इज योर लाइबिलिटी and the investment by owner is the capital. Okay, loan is the liability and investment by the owner is capital. So ये जो एक ट्रांजेक्शन है उसने एसेट साइड को भी इफेक्ट किया है एंड लाइबिलिटी साइड को भी इफेक्ट किया है. इन द सेम वे अगर हम कहें कि यहाँ पर ये था कैश, ठीक है, अगर हम सेम वे में बोल रहे हैं कि हमने लोन को पे कर दिया, लोन पेड. अब देखो सेकंड मैंने बोला लोन पेड, लोन पे कर दिया 5 लाख का, ठीक है, तो इस 5 लाख की वजह से हमारे 5 लाख का कैश चला गया, क्योंकि मैंने बताया था ये जो कैश है वो एसेट्स हो जाता है, तो हमारा 5 लाख का कैश चला गया और 5 लाख की लाइबिलिटीज भी चली गई. तो एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों पे ही ट्रांजेक्शन का इफेक्ट पड़ा. दिस इज नोन एज डुअल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटेंसी और डुअल कंसेप्ट. Rest of the concept we will understand tomorrow.